Hello, everybody. Welcome to the Astrology Show. Today, we have our guest, Karthik Baloni, who is someone who has been an assistant professor in SRM University, who has been a guest lecturer in Amity University, and he's someone who's very authentic as a person, very out there as a person, very straightforward as a person. He got his ideas straight, and what I mean by that is that he is very much, I'd say, committed to his ideas. What he thinks is what he delivers. And so this conversation with him is based on, of course, by the title, you can see it's on men's mental health. And this conversation is going to make you think about yourself as a man, probably. And because while I was having this conversation, I was having a deep look into myself as well. And so I believe that this conversation would do that to you as well. Enjoy the episode. We have talked about aggression, men being aggressive. We have talked about men being vulnerable. We have talked about men being in love. We have talked about crazy concepts related to men's mental health. And so enjoy the episode. Have something to eat, and maybe if you want to go out on a walk, just enjoy the episode. And I hope you I hope you think about yourself during this episode. Thank you. Enjoy the episode. तो वैसे सर मेरे को पूछना है कि जब आपने पहली बार ही प्रोबेबली देखा होगा ये मैस्कुलिनिटी जैसे शब्द हो गए या व्हेन यू वर एंटरिंग द एडल्टहुड एंड एवरीथिंग व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हाउ इट like what does it mean for you as a man, what it meant then and what it means now in your 30s? Great question. उस टाइम पे ऑब्वियसली द काइंड ऑफ कल्चर दैट आई एम इन, राइट, वी नो इट्स अ पेट्रियार्कल कल्चर, Right, है ना, और definitely. बहुत फिक्स्ड आपके जेंडर नॉर्म्स हैं कि व्हाट इट मींस टू बी अ मैन, व्हाट इट मींस टू बी अ वुमन, राइट. So definitely for me at that time, it meant that you have to be in this role where you are more dominant, and you should be physically very, brawny should be there, है ना, ताकि लगे कि भाई द रियल मैन, असली मर्द जिसको Correct. बोला जाता है, ठीक है. बट लेटर ऑन जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आई ग्रेजुएटेड इन माय ओन फील्ड और ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उसमें आई हैव रियलाइज़ कि इस चीज़ की देखा जाए तो असल में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए हो, किस तरीके के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन, राइट, एंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ फीमेल, राइट. लेट्स से इफ आई वाज़ इन सम बोर्न टू सम मैट्रियार्कल कल्चर, तो वहाँ पे तो सारी पावर औरतों के पास होती, राइट. और अगर आप तब मुझसे सवाल पूछते, तो मैं सपोर्टिव ये कहता इट मीन्स टू बी सपोर्टिव, बट नाउ आई एम सेइंग इट मीन्स टू बी डोमिनेंट, है ना. तो आप कहाँ पैदा हुए हो, किस तरीके के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके के आपके पेरेंट्स रहे पास्ट में, टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट विल फॉर्म योर डिस्क्रिप्शंस कि एक एडिक्वेट अप्रोप्रिएट या रियल मैन होता क्या है. Obviously, for me, it means that you're strong, you're not dependent on anybody, right? And you take responsibility. Responsibility से जो दूर भागता है. See, this is my personal opinion. You always hold responsibility. You always have accountability, and you're always willing to, go an extra mile to honor your commitments. ठीक है? Once you say something that you're gonna do, then you ought to do it, right? So this is what I think, right? And कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि that we need to support other people and even our female counterparts wherever needed. अगर आप वही नहीं कर पा रहे तो, क्या फायदा फिर मर्द होने का? and this is based on the culture that I'm born in, हाँ, right? अगर मैं कहीं कोई और born हुआ होता तो मैं कोई और जवाब दे रहा होता, right. right? So I have like just entered, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि I just entered my 20s, just मैं 20 का अभी हुआ हूँ, like a ठीक है. couple of months. And of course there have been some transitions that had happened and everything. And what I think about being a man, or this role of, this role of responsibility that comes with it, right? I think is कि someone जो control भी रख सके and not
control, but I don't mean control here by possession. I mean Mhm. control here by in terms of अपने ऊपर एक कंट्रोल रहना, अपने ऊपर एक कैसे कहते हैं वो, Emotionally, इमोशनल कंट्रोल रहना, एंड साथ में अपनी चीजों पे ऑटोनॉमी भी पाना, Hmm. right, around your environment, around the relationships that you have in a healthy manner. Let me summarize. Basically, अपनी लाइफ को गाइड कर सके. अपनी लाइफ को गाइड कर सके, Right. दैट हाँ, एक तो अपनी लाइफ को गाइड कर सके, और एक और चीज आई थिंक, जब कोई ऐसा फेज है जहाँ पे आपको गाइडेंस नहीं आ रही है खुद से, Mhm. तो द willingness to take help as well, the willingness to say कि yeah, I think I need help here, that is also very essential, because then ego आ सकती है फिर, अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं ही मैं ही अपना कृष्ण भगवान हूँ मुझे किसी की कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीवन to tell me anything, to advise me anything, to suggest me anything. I think that's a pretty rigid mind to lead a life, I think. I think that is something that comes in handy with masculinity. कि at some point, because कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि you have to take the lead, you have to take the lead. But at the same time, you're being told that you have to be open to help. है ना? वो कंफ्यूजिंग रोल्स हैं कि भाई क्या करना है, हेल्प मांगू कि मुझे ही करना है. तो ऐसे सिनेरियो में आई थिंक अ पर्सन कैन गेट कंफ्यूज्ड, एंड दैट इज समथिंग दैट कम्स इन हैंडी विद मैस्कुलिनिटी. ठीक है. बट ऑल्सो आई थिंक जो आपने ये सारी चीजें बोली हैं, दीज आर इवन ट्रू फॉर femininity, हाँ, femininity right? women के लिए That भी even है. you should have the power to guide your own life. Correct. Even you Correct. should be open for all these things, right? तो जो हमारी ये डेफिनेशंस है ना मैस्कुलिनिटी की, फेमिनिटी की, ये सारी ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं, और ये बेस्ड हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, राइट? अब नया ज़माना है, अब लोग अपनी द डिबेट ऑन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, लोग अपनी अपनी डेफिनेशंस बना रहे हैं, राइट? सम पीपल आइडेंटिफाई एज someone has a male gender, right? Or I'm sorry, somebody is biologically male, but they will say I identify as a female, right? So now is a time of transition. Many new things are there. We need to see how we have to adapt to it. What are the definitions of masculinity, or so to say, about being a man that you think कि हाँ, I think this is something that I also abide by? Me personally, so as I've told you that you have to have responsibility, you have to honor whatever you're saying. This is what the definitions you've heard, like from the outside world. From the outside world, and even I think that yes, this My is something that I've adopted because I relate with it, right? If you honor something, right, and it goes at some point of time, it goes against your emotionality, I don't feel good doing it. No, you have honored it, you've got to do it. You don't feel good about it, you don't feel like it's messing me up. What is there for me? I don't have anything to gain from doing it, right? You still got to honor it because you've given your word, right? या तो आप सोच समझ के बोलो, या तो आप बोलो मत कि मैं करूँ. But once you've got to walk the talk, एक बार आपने commit कर दिया, then you've got to honor it. I personally feel that is an essential masculine trait. Also, you have to be responsible. Responsibility से नहीं भागना कि भाई blame game खेलते रहो. अरे यार तूने नहीं करा था, तूने नहीं करा था. It's your job, right? Once you sign up for something, it's your job, right? These are essential masculine traits. Masculine. I think what you have here talked about, I think you need to be very wise with what you say also, to yourself and to the other people. Very thoughtful and very wise. कि अगर आप कह रहे हो कि कल मैं अगर सुबह जल्दी उठूंगा, then उठो फिर, मतलब like if you're having that conversation with yourself कि कल मुझे ये करना है, तो you have to do it then. Is that what you're saying, maybe? Somewhat, yeah. Somewhat. Right. Can I ask you one question? So there is this thing that it gets thrown away. It बहुत ज़्यादा इसके साथ खेला जाता है. There's this debate. Normally they say that men are logical, women are emotional. Right? आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में? What do you know about this thing? Do you relate to? I do not believe in the fact of कि men ऐसे हैं, women ऐसे हैं. There are masculine traits and then there are feminine traits. So do you think that So emotionality is a trait that you can associate more with women? Emotionality में फिर बहुत सारी चीजें आती हैं सर. I think so. Emotionality में आप Being affected more with your emotions. affected more कि आपको कैसे feel होता है. Yes. Let's say I'm feeling nervous about something, and I have to do this job. So am I
yet able to do it despite of the fact that I'm nervous, versus somebody who is feeling nervous and they like, I cannot do it because I'm feeling nervous, I cannot do it. I'm asking that there are certain people, irrespective of the fact वो जो भी feel कर रहे हैं, they'll just do it. And then there are people who won't do it हाँ based on the feeling. ये जो चीज है, ज्यादातर आपको क्या लगता है that this is more true for men or for women? for both the genders here because it's a human thing. हम्म, It's a human thing. This is personal belief. This is not gender के बारे में यहाँ पे नहीं है. This is a human thing. I see. मैंने खुद करी है ये चीज़ हम्म, कि I feel like कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि हाँ आपने क्या बोला था हाँ ये जो feeling पे based होना कि चाहे regardless of what I feel I'm gonna do this task what I plan to do. right. And this other thing that you mentioned कि you know मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं कर रहा या फिर I'm not in a good headspace, I'm not in a good emotion state, so I won't do it. And so I think it's a human thing at the end. This is not a gender thing. This all comes down to that fact. कि Right. So as I'm telling you, this is a matter of debate. one more take I'm assuming, right? Not being definitive about this here. If your father and mother is जैसे biologically speaking here, right? कि ओके लेट्स से कि हम अगर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स हैं और उन्होंने बच्चा करा एंड द चाइल्ड इज तो जो पेरेंट्स हैं उनके जो ट्रेड्स हैं वो ये हैं कि क्या बोलते हैं जैसे फादर की बड़ी फेमिनिन साइड आती है लाइक देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन ऑफ लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द फादर हियर Okay. and then there is the mother balanced feminine and masculine traits and I know I'm talking about a scenario which is very ideal probably right? Because probably no one has the balanced masculine or feminine trait. I would say if anybody is not having big time problems, एक बहुत सिंपल सा तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि एक जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है एक इंसान की लाइफ का और फेमिनाइन वो बैलेंस्ड है कि नहीं. अगर बिग टाइम प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, मेजर इश्यूज नहीं है इमोशनल रिलेशनशिप वाइज करियर वाइज, आई वुड से मोर और लेस इट इज बैलेंस्ड. बट सर वही बात है कि इश्यूज तो सबके होते हैं. सबके See, I'll tell you one thing. Hmm. Never be incapable of aggression. Okay. हैं Certain things in life, you won't get it without aggression. To हाँ. be honest. At the same time, don't get consumed in your own aggression. है ना? इतना गुस्सा आ गया किसी के ऊपर इतना गुस्सा कर दिया क्लास में कि खुद ही आप खड़े होकर कांप रहे हो ऐसे एंड यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ. या फिर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि किसी को आपने कुछ भी बोल दिया. ठीक है? Don't get consumed in your own aggression. At the same time, be capable of aggression. Right? And it is best if it is avoided. Bruce Lee used to say the best fight is the fights that I have avoided. किसी ने उससे पूछा कि यार तू तो लड़ता रहता है तेरी बेस्ट फाइट बता आज तक की कौन सी है. उसने कहा the ones that I avoided. Right? I say I like agree with this. Right? But at times you need to be capable of it because otherwise जो आप करने के लिए निकले हो घर से वो होगा नहीं. I completely believe in you, but I also think the variability of aggression and anger, right? So it varies. So like varies. Plus, it's about that what type of aggression or type of anger you are posing here, right? कि आप किस तरीके से because aggression भी बहुत तरीके के type हो गए ना एक तरीके से. हमने तो पढ़ा भी है. Obviously, you don't start beating somebody. Yeah, That exactly. is You don't purely know. instrumental. You go how you वो go तो about illegal it, है, आप and नहीं कर सकते. exactly, and Right. how you channelize it, and then and everything. So you're at the end on the base level, we are talking about how you deal with the aggression and the anger, right? So your dealing का जो mechanism है आपका, हाँ, you should know how to regulate it. You क्योंकि should ये know हमारे अंदर एक natural instinct है. अब Yeah, कोई yes, अगर humans ऐसा है कि है. ये बिल्कुल नहीं आ रही, तो I don't know, maybe they are above us or maybe they are something is wrong with them. आपको क्या लगता है सर कि जब aggression या anger we think तो do you believe in this कि men are nature में ही है men के to be anger and to be aggressive? Yes, You think that? yes. Why You is got because this is what evolutionary psychology tells us. That कहीं ना कहीं अब अगर आप देखोगे मैं आपको एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया समझाता हूँ. ठीक है? मान लो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ठीक है? तो 24 घंटों में से जो हमारी सिविलाइज्ड लाइफ है, ठीक है, अगर मैं पूरा जो जियोलॉजिकल टाइम है उसको स्केल डाउन कर दूं, है ना, अभी तक जो हम होम्योसेपियंस सबसे हमारा एग्जिस्टेंस रहा है अर्थ पे, अगर मैं उसको बोल दूं कि वो पूरे टाइम को मैं कन्वर्ट कर दूं एक दिन में, है ना, सो एक दिन हैज 24 आवर्स. आउट ऑफ दैट 24 आवर्स ओनली इट इज फॉर समवेयर अराउंड 1 आवर
that we started living a settled life. उससे पहले हम लोग hunter gatherers की तरह जीते थे, ठीक है? Hunting is something where you need to be aggressive. You need to be like कि भाई you have to go to an extra mile, you have to be aggressive, right? You have to dominate. चेज होती थी एनिमल की, क्योंकि खाना क्या है, आप एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हुआ नहीं है, खाने के लिए आपको एक जानवर को मार के लाना पड़ेगा पूरे अपने कबीले के लिए, तो आप उसका दिन भर दिन पीछा करते जा रहे हो, मे बी उसके साथ क्लोज एनकाउंटर्स होंगे, सो यू नीडेड टू बी, यू रिक्वायर्ड टू बी एग्रेसिव। कहीं ना कहीं एवोल्यूशन ने हमें इस तरीके से शेप करा है कि मेन आर एग्रेसिव। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? हाँ, गो एंड लुक इन द जेल्स, गो एंड लुक इन द जेल्स। वी नो फ्रॉम रिसर्च दैट मेन के साथ में मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स आर वेयर दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर। मर्डर कर दिया, किसी की पिटाई कर दी, है ना? इतने सारे मर्डरर्स हैं, देखिए वास्ट डिस्पैरिटी बिटवीन मर्डरर्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर women, Mostly are men and women, males. Mostly are men. right? Yeah, I mean, for survival and control, Hmm. at the end, it comes down to survival and control and possession. कहीं ना कहीं एवोल्यूशन ने ही हमें इस तरीके से शेप करा है, ठीक है? क्योंकि एवोल्यूशन उसी तरीके से शेप करती है जैसे जरूरत होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है? बट एट द सेम टाइम नाउ इट इज नॉट नीडेड। अब थोड़ा ना भागना है आपको जानवर के पीछे, लेकिन वो चीज पड़ी है वहीं की वहीं पड़ी है। See, अब जानवर नहीं है ना सर। See, हम्म। it's like अब जानवर नहीं है, अब पैसा है, अब हम्म। सक्सेस है। हम्म। पहले सर्वाइवल के लिए आप जानवर को मारते थे Right. ताकि आप खाना ले लो एंड एवरीथिंग, Right. आप अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर हम्म। लो, राइट? अब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। अब पैसा कमाना है, अब घर खरीदना है, ये सारी चीजें हैं, देन यू हैव योर मटेरियलिस्टिक मैं वही कह प्लेजर्स रहा एंड हूँ, एवरीथिंग। अभी पैसा है, उस टाइम पे खाना होता था, उस टाइम पे खाना उस टाइम पे खाने को ऑब्टेन करने का ओनली वे इज फिजिकल एग्रेशन, होता। राइट? अब पैसे को ऑब्टेन करने के लिए क्या आपको एग्रेशन की जरूरत है? नॉट नेसेसरली, यू कैन हैव नॉलेज और मे बी एट टाइम्स यू हैव टू येल एट पीपल, वो बहुत छोटा पार्ट है उसका, एंड दैट इज वर्बल एग्रेशन। यू डोंट नीड टू बी फिजिकली एग्रेसिव इन ऑर्डर टू अर्न मनी, बट True. उस टाइम पे अगर खाना चाहिए तो यू गॉट टू बी एग्रेसिव, फिजिकली एग्रेशन यू गॉट टू बी एग्रेसिव, ठीक है? पुराने जमाने में, पुराना जमाना नहीं, आई मीन पुराना एरा, उसमें जो मेड सिलेक्शन प्रोसेस है विमेन का, दे वर मोर अट्रैक्टेड टू द मेल्स दैट वर एग्रेसिव। रीजन बीइंग, उसके साथ में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली व्हेन ही विल गो फॉर अ किल, ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही विल बी एबल टू फीड यू, राइट? बट ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे आर नॉट नीडेड एनीमोर, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं एंड दे कीप स्प्रिंगिंग अप, सी स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। completely agreed on this, but also the mating psychology here talks about it कि mating psychology में clearly ये बताया गया कि women are attracted to men who can lead, responsibility, the things we mentioned earlier as well, राइट। एक dominant nature होना, कंट्रोल होना खुद पर, एनवायरनमेंट पर, ये सारी चीजें मेटिंग साइकोलॉजी भी बताती है। खुद पे कंट्रोल नहीं होता, एनवायरनमेंट को कहाँ से करोगे? मतलब हाँ, यस दैट इज नीडेड। खुद पे कंट्रोल नहीं होता, बट एनवायरनमेंट को कैसे करोगे, दैट इज योर, You first got to control yourself and then maybe you can do something with the या सो environment. इट लाइक देयर इज अ, उसके स्टेप्स है ना, फिर मतलब आप अपने आप को पहले कंट्रोल कर पाओगे Hmm. एंड एवरीथिंग, यू नो Hmm. हाउ यू लीड, हाउ यू परसीव एंड एवरीथिंग, राइट? एंड वील टॉक अबाउट परसेप्शन ऑफ मैन डेफिनेटली, बट Mhm. so what I'm saying here is कि it is not needed now, definitely, but it is there at the end. It's not Evolution needed, की वजह से। definitely, evolution की वजह से, You know, क्योंकि there are some organs in our bodies. There are some organs in the bodies of animals which are not needed, but they are still there. उनका कोई यूज नहीं है। एक एग्जांपल उसका है अपेंडिक्स, निकाल दो, होती भी है बहुत लोगों की सर्जरी अपेंडिक्स की ना, निकाल के फेंक दो, बॉडी स्टेज इंटैक्ट, कुछ नहीं होता, राइट? इट्स लाइक दैट टू सम एक्सटेंट। तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन वी ब्रेक दिस एवोल्यूशन का जो चेन है, अकॉर्डिंग टू यू, कैन इट बी, क्या हम इसको तोड़ कैन यू सकते हैक हैं? इट? Can you बेसिकली मे बी हैक इट? यू कैन ट्रांसम्यूट योर एग्रेशन। वो जो सारी चीजें हैं, यू कैन टेक इट एंड यू कैन चैनलाइज इट इन अ डायरेक्शन कि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, चैनलाइज करना हो, हाँ, उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, रिमूव तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसको रिमूव करने बैठोगे तो पता नहीं, हो सकता है आप ही रिमूव हो जाओ, है ना? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट नेचर हैज प्लेस्ड इन यू, दैट इज समथिंग जो कि एवोल्यूशन का सॉर्ट ऑफ, you want to call it trap, you can call it trap, or it is something that has been given to you, right? But you can take it and maybe you can utilize it for a better purpose, and that you have to decide.
दैट यू हैव टू डिसाइड, है ना? सो ट्रांसम्यूट कर सकते हो आप एक तरीके से अपने एग्रेशन को इनटू समथिंग दैट इज मोर क्रिएटिव, लाइक यू कैन मे बी स्टार्ट एंगेजिंग इन मार्शल आर्ट्स। और आप देखोगे दिस इज समथिंग दैट मेनी पीपल हैव नोटिस्ड, व्हेन यू एंगेज इन मार्शल आर्ट्स, when you start mastering all those moves and all those things, at one point you'll be see कि all of a sudden आपकी अपनी aggression को control करने के एक magical ability आपके अंदर आ गई है। आपने कोई ऐसे psychologically काम नहीं करा अपने aggression के ऊपर में, you just went and trained and mastered the moves, and now all of a sudden you have an ability to control your anger. You're not shouting on people anymore, you're not feeling like hitting people anymore, right? Controlled हो गए हो आप। You are still a gun. Earlier you were a gun that would fire at anybody. Now you are a controlled gun, क्योंकि आपने मास्टर कर लिया उस चीज को, और उसको पहले आपने रियलाइज करा कि ठीक है, हाँ ये चीज है मेरे अंदर aggression, then you worked on it, then you transmuted it. Same thing that you earlier called aggression, now it is controlled aggression. And it is a strength of you that It is a strength. at the end of the day. तो ये आपने एक फायदा उठा लिया उस चीज का। It's about how you can put it into a good use basically, right? आप अच्छे तरीके से उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एग्रेशन है जनरली, तो मे बी दे कैन यूज इट अपने काम में, अपने स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर पर्सनल ग्रोथ एज Right. एन And इंडिविजुअल। there have been instances like that. अगर आप जाओगे, Of many course. successful That happens. sports person, Cristiano Ronaldo, I think, Right. works like that. He has a lot of. Right. He is someone who is very. अगर किसी को बहुत ज्यादा aggression गुस्सा है। आता है ना, बहुत ज्यादा उसका ब्लड बॉयल करता है, देयर इज जस्ट अ मोमेंट वेयर दिस नीड्स टू बी चैनलाइज्ड एंड यू कैन कंप्लीटली चेंज द पर्सन, क्योंकि पोटेंशियल है, कुछ चीज है जो फायर कर रही है, यू जस्ट गॉट टू एम इन द करेक्ट डायरेक्शन नाउ। So it's so you're saying to break this evolution chain, we can maybe put it into a good use. हाँ, That's the you'll have, answer. हाँ, it's like a part of it. हाँ, it's a You part of need it. to give, सिर्फ वही नहीं हो सकता, of course, हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। you can do that with certain practices also, like, or you can maybe just engage in introspection अपने साथ में, कि अगर मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, इसकी जड़ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, Root causes of it. रूट कॉजेस क्या हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हो। मे बी यू कैन एंगेज, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मे बी दे कैन एंगेज इन सम फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक मार्शल आर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट, so that will give them an opportunity. How can you actually like regulate your anger? Whatever you want to regulate, the first step is to be aware about it. You have to know कि anger का मतलब क्या है। अच्छा, अब मैं गुस्सा करने वाला हूँ, आप देखोगे people who just lash out and shout at anybody, उससे पहले कुछ साइंस आते हैं, और वो उन साइंस से अवेयर नहीं होते। The moment they start becoming aware of these things, ठीक है, जब उनके कॉन्शियस अटेंशन में ये चीज आ जाएगी that okay, I'm about to lose it, that is the first step, right? So you have to pay attention to the signs. When we talk about science here, are we talking Hmm. about the physiology? या फिजियोलॉजिकल Because लेवल body पे भी, गर्म हो हाँ, गई आपको, बॉडी हम्म, गर्म हो सकती है, हम्म, you feel मे बी हार्ट बीट भी तेज हो सकती है एंगर हाँ, के ड्यूरिंग, राइट? हम्म, सो इज द देयर is कैन that बी the फिजिकल साइंस, और दे कैन नो दैट ओके, अब देखिए, दे कैन टॉक, दे कैन स्टार्ट इन अ सेल्फ एंगेज इन अ सेल्फ टॉक दैट सी नाउ दीस थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम अबाउट टू लैश आउट, so better leave that place, or better I take control, become more conscious in the moment that okay, see now my heart rate has raised up, means I'm about to shout on anybody, so I better keep my mouth shut for a while. दिस हैपेंस विद men a lot, I think. हम्म, ये जो एनकाउंटर हो जाता है ना गुस्से के साथ हम्म, during situations, and some men lash out and some don't, and हम्म, some say कि भाई मैं इधर से निकल ही जाता हूँ, and they become, but when this is done in extremes, right, it can lead to an avoidant attachment style or an avoidant way of life, leading a life. ठीक है, This can probably lead, मतलब I'm not opposed to the idea of stepping out of the place that जहाँ पे anger हो रहा है. That's definitely a good solution to it. Maybe आपको पता है that you are capable of harming the other person in a way that is gonna emotionally, what do you call, emotionally exploit them, right? And आप physically भी maybe harm कर सकते हो अगर आपको पता है ये चीज कि I have these capabilities in me, तब it is probably good कि हाँ आप उधर से निकल जाओ। okay, I'll tell you my way of dealing with it.
अगर मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो या बहुत ज़्यादा आई फील लाइक आई वांट टू डू स्टफ व्हिच आई कैन नॉट से, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये खुद से पूछता हूँ कि यार तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? फिर मुझे एक जवाब मिलता है, यार मैंने ये सब करा था, ऐसे सब कुछ सेटअप हुआ था, अब ये ऐसे कर रही है या कर रहा है, राइट? तो मैं ओके, देन देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, सो दैट मीन्स यू वांट दैट एवरी पर्सन शुड बिहेव हाउ यू वांट इट? हाँ, अगेन फॉलो अप क्वेश्चन, इज दिस जस्टिफाइड, इज इट रीजनेबल? नो. No. So is your anger reasonable? No. Anger gone. I just realized that what I'm doing, it's not justified. See, this takes a lot of cognitive clarity in your mind. There should be a cognitive clarity at the end of the day. जैसे I was recently talking about it कि हाँ, the reason you have negative thoughts Hmm. and आप उसमें चले जाते हो and या फिर अगर आप मैं कहूँ extreme negative thoughts, extreme positive thought and ends up in cognitive distortion probably. Hmm. Is that you Yes, would agree yes. with that? That is Right? the official definition of That a cognitive distortion. yes, Yes. right? So that happens, correct? So जब पॉइंट ही भूल गया मैं बात का, कॉग्निटिव डिसऑर्शन आपका हो जाता है Hmm. ड्यूरिंग दिस पूरा एंगर वगैरह, तो अब नाउ यू नाउ आई गॉट द पॉइंट, नाउ यू आर एबल टू रेगुलेट इट बिकॉज आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इतना नहीं है, लाइक यू कैन रेगुलेट इट एक्चुअली, Hmm. राइट? Hmm. बट काफी मैंने नहीं कर पाते, लाइक आई हैव सीन, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब एक एग्जांपल ही देता हूँ, मतलब बहुत एक जनरल एग्जांपल है यार कि लैश आउट हो गया आप एक ऐसे एनवायरमेंट, वो नहीं कर पाते हैं, Hmm. उनसे होता ही नहीं है, दे कैन नॉट डू इट। तो कोई Hmm. मतलब मैं आई नो, सी you are not a know it all, right? Of course you are also figuring out life Hmm. and you don't know everything, I Hmm. agree with that, you know, but what do you think कि जिससे शायद होता ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है? Is it a step by step thing? Is it कि maybe time के साथ you observe how you actually express your anger in your relationships, you see it once, twice, thrice, Hmm. right? आप देखते रहो and then जब आपने देखा कि यार मेरे सारे aspects में यही चल रहा है, so then it is something to think about, right? Hmm. So is that how you're saying कि maybe a man can What I've live this process? told you is one way Yeah, that I use, exactly. and that maybe anybody can apply it. ठीक है कि यार जिस चीज के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या वो जस्टिफाइड है, और मोस्ट ऑफ द एंगर इट इज स्टेमिंग फ्रॉम इनएबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल। मैं ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, इसके अलावा और कोई थॉट पैटर्न नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जस्टिफाइड नहीं है। मान लो किसी को ये बात मानने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो नहीं, इस चीज, ये कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, इट्स जस्ट इफ यू एक्सप्लोर फॉर 5 मिनट्स यू विल नो, राइट? There are anger management protocols, there are many visualization exercises, there are Okay. many, आज के डेट में तो you even have help from biofeedback, from technological machines and all those things. You can, any person, they can go to a therapist, they will anger management कर सकते हैं वो, उसके साथ में CBT कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें they can Do get you help. believe in therapies and all? Do you think can actually work? Therapy in what case? Like जैसे Anger के केस में? एंगर के हो गया, या फिर जनरली भी अगर मैं बात करता हूँ थेरेपीज के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कि ये जो CBT है, सी आई नो, जब जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, हम्म जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, हम्म स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, इन हम्म सिविरिटी केसेस में थेरेपीज कैन वर्क डेफिनेटली, हम्म राइट? जैसे कि CBT इज बिन, मतलब जितना हमने पढ़ा है मैं उससे बता रहा हूँ कि हमने देखा, हम जब पढ़ रहे थे कि CBT ही ऑलमोस्ट हर किसी को, हम लोग डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो CBT इज बीन सजेस्टेड almost in almost every disorder. yes CBT yes is there, हम्म right? So do you think these therapies can actually work for individuals who, जिनको इतना severe cases नहीं है? एक्चुअली दे आर मोर रेलेवेंट इन दीज केसेस जहाँ पे सीवियर केसेस नहीं। देखो अगर सीवियर केस Okay. होगा, है ना, तो बैठेगा ही नहीं आपके साथ, आप हर बात बोलोगे उठ के भाग जाएगा, है ना, या तो आपको उसको टैबलेट देनी पड़ेगी, Probably राइट? medication. बैठेगा ही नहीं वो, हो सकता है उसको बांध के भी रखना पड़े, राइट? सो इन सीवियर केसेस दे आर नॉट रियली इफेक्टिव एक्चुअली, बट येस इन द केसेस वेयर द पर्सन हैज इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या होता है कि इंसान को पता है कि हाँ मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट, दैट इज व्हाट इनसाइट मीन्स। जहाँ इंसाइट होती है एंड वेयर द पर्सन इज कमिंग अपनी मर्जी से थेरेपी पे, या दे आर कमिंग चलो यार चल के एक बार देख ही लेते, वहाँ इट कैन वर्क एंड इट हैज वर्क। देयर इज लाइक mass amount of evidence on this thing. It's an evidence based treatment, CBT,
for anger management. It has worked. It has worked. Yes. So this process of working on it, right? I think many essentially men cannot या इस पे पहुंच ही नहीं पाते इस स्टेज पे। उनको पता लग गया, इंसाइट हम्म मिल गया यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट वो हम्म वर्क करना, कि अब वर्क करना है हम्म या आई हैव टू वर्क ऑन इट, यू नो आई शुड वर्क ऑन इट, ये थॉट नहीं आ रहा, जो थॉट राइट? नहीं आ रहा। थॉट नहीं आ रहा या फिर एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। अगर थॉट आ गया तो ठीक इट्स है द थॉट इज नॉट टर्निंग इनटू एन एक्शन। ठीक है। हाउ डू यू डील विद दैट? So maybe I think if it's not going into execution part, maybe they do not have good enough reason to execute it. Right? There is no good enough reason. मान लो किसी की शादी ही टूटने वाली है इस चीज की वजह से। बहुत अच्छा बंदा है वो, है ना, सारी चीजें बढ़िया टाइम पे करता है, प्रोवाइडर है, ऑल दोस थिंग्स, यू नो, द वर्क्स, टिक्स द बॉक्सेस, है ना। एक ही चीज है बस ये, और इसकी वजह से उसकी शादी टूटने वाली है। अब क्या उस शादी का महत्व है उसकी लाइफ में? अगर है, then most likely they are going to execute it. And if they don't feel like doing it, you know what it means. Maybe they are not pretty right about it. I think you're pretty much right about good it. enough reason चाहिए होता है हमें हर चीज को करने का। और हम हर अगर वो डिसीजन में सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ह्यूमन बींग्स ना, हमेशा सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है वो हम लोग हैं। हर डिसीजन हमें चाहिए हमारा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या नुकसान होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस ये बताता है कि देयर इज नथिंग टू गेन आउट ऑफ दिस, आई एम नॉट मोटिवेटेड टू इट। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू समथिंग, उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड ये बोल रहा है कि यार फायदा ही नहीं है इसका कुछ। सर चिल्ला रहे, मैं क्यों सुनूं उनकी बात, मैंने एडमिशन तो ले लिया है साइकोलॉजी में, मैंने आगे जाके करना ही नहीं, मैं बस बैठा हूँ यहाँ पे टाइम काट रहा हूँ अपना। उसको इवेंचुअली लगता है कि नॉट अ गुड इनफ रीजन टू एक्चुअली राइट। से अगर होता तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाती है अंदर से। But what do you think about for men who actually want to work on their physique and they want to go to gym and work out, like because they have self-image issues, they have body image issues, and they have they have heard enough criticism about themselves from other people, and also the self-talk that is happening at the back of the mind. So उस टाइम पे दे हैव गुड इनफ रीजन, उनको अंदर से पता है, बट द कंफर्ट इज किलिंग इट, द कंफर्ट इज किलिंग द एग्जीक्यूशन, राइट? जो आइडिया ऑफ कंफर्ट है वो इट्स नॉट लाइक बेनिफिटिंग द सिचुएशन। ठीक है, उसको कैसे करोगे? बेसिकली आई थिंक द क्वेश्चन हियर कम्स अप, देन हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ द वांट टू टेक कंफर्ट? So you'll only give up comfort for something that is more attractive than comfort, right? अगर मैं आपको बोलूं आपको अट्रैक्टिव देन दैट मेक्स अगर आपको अपने घर का कंफर्ट छोड़ना है, इन रिटर्न क्या है आपके लिए उसमें? व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर कंफर्ट, है ना। बट मे बी देयर इज समथिंग जो उसको आपने कंफर्ट से भी ऊपर प्लेस कर दिया है हायरार्की में। तो अगर वो चीज होगी, सो देन यू विल हैव अ गुड इनफ रीजन टू लीव कंफर्ट। अदरवाइज फिर डंडा होना चाहिए आपके सर पे। अब यही तो होता है जो फिर साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके ड्रग्स छुड़वाने होते हैं, है ना, उनको फिर असाइलम में भर्ती करके रखते हैं, डंडा रहता है उनके सर पे। बच्चे होते हैं, देखो बच्चों का, बच्चे आई मीन पीपल लाइक किड्स, उनका इम्पल्स रेगुलेशन इतना अच्छा नहीं होता, डेवलप नहीं होता एज एडल्ट्स, राइट। तो वो ये सारी चीजें नहीं समझ सकते, तो फिर हम उनके ऊपर डंडा रखते हैं कि भाई अगर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बट अब ये वही बात है, आप कह रहे हो जब मैं बच्चा था मेरे ऊपर डंडा था तो मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा था। नाउ आई एम अ ग्रोन अप, राइट, सो देयर इज नो डंडा, सो कंफर्ट, आई लुक फॉर कंफर्ट। तो या तो आपके सर पे डंडा चाहिए या तो अ गुड इनफ रीजन टू लीव योर कंफर्ट। पर अगर कोई भी चीज एक्सट्रीम कर दी तो इट कैन रिजल्ट नेगेटिवली फॉर द इंडिविजुअल। व्हाट आई मीन बाय हियर इज प्रोबब्ली कि अगर आपने जैसे फिर गाइस हु यू नो जो हॉस्टल में बड़े हुए हैं, बोर्डिंग स्कूल में बड़े हुए हैं, वहां पे डंडा रहता है हर समय। ठीक है, अब आप बोर्डिंग और हॉस्टल से निकल गए, अब आपको मिल गई आजादी, आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है उस एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है, क्योंकि आपके ऊपर डंडा था आपके बोर्डिंग स्कूल के टाइम पे, हॉस्टल के टाइम पे, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर कंट्रोल पाया जा रहा है, आपके ऊपर एक तरीके से डोमिनेंस पाई जा रही है, ना आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जब आप वो बच्चे से उसका कंट्रोल और एबिलिटी टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स ये सब आप छीन लेते हो एट अ वेरी यंग एज, तो वो आगे जाके बहुत नेगेटिव वेज में रिजल्ट कर सकता है।
the person can become very immature as they grow up. They can, मतलब जैसे I've seen people like that, मतलब myself, and I think I was partly that, maybe. मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो I was maybe partly that. कि ये चीज़ होती है, अगर आप अपने आप को हमेशा से रिस्ट्रिक्ट करते आए हो एनवायरनमेंट की वजह से, और आप बाहर की दुनिया में निकलते हो, आपको पता ही नहीं है डील कैसे करना है. You don't know how to deal with the realities of life only, right? You don't know how to talk to people. So many men have this problem of talking to women, क्योंकि कभी करी नहीं है ना, बोर्डिंग स्कूल में, बॉयज हॉस्टल हाँ में, डेफिनेटली मेक right? सेंस हाँ They don't know how to converse with women. They're like, what is your favorite color? अरे भाई, that's not the Black. point here we are talking about, right? What is your favorite color? Okay, well, what did you do all day? This is not how you converse, right? That's not a conversation happening at the core of it. राइट This happens when danda is there is control on you, and कंट्रोल भी and है everything. इवन अगर जैसे फैमिली भी आपको एक बहुत इंक्यूबेशन Healthy ग्राउंड regulation is probably that we should do in बच्चों के साथ, you know. I know danda to an extent, by that's how I started this whole topic by saying if we do this in extremes that can result हाँ in एक्सट्रीम में तो प्रॉब्लम आएगा तो वही बच्चों पे भी तो हम ध्यान रखते हैं कि भाई इस लेवल तक ही करना है ज्यादा अगर आप करोगे तो फिर तो साइकोलॉजिकल चीजें आएंगी वो तो आएंगी बट एक पॉइंट तक रखना पड़ेगा और कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे जहाँ पे नहीं पड़ती भाई जरूरत डंडे की नहीं पड़ती ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं वो है ना there's a friend of mine, very close friend of mine, Anshuman, and his childhood was completely different from हमारे surroundings, I think so. Both parents are working, एक नानी है, so उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने क्या करा यार, उसके पेरेंट्स ने सिंपल सी चीज करी, एंड ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बच्चे पर, आई बिलीव, बट उसके साथ एक अच्छी चीज बिल्कुल हुई. His ability to adapt to environment is high. His ability to have new experiences, wanting to have new experiences is high. And the complete reason is because उसके जब वो बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारी एक्टिविटीज में डाल दिया. तू टेनिस की प्रैक्टिस पे जा, तू डांस प्रैक्टिस पे जा, तू म्यूजिक की वी टॉक्ड अबाउट इट, ही टोल्ड मी कि यार मैं हमेशा क्लासेस में था. By 6th he was in Fiji, so he was, and then he was also doing football coaching, and then he got focused because then he found his core, right? He found his core, and the core was football for him as a sport, and he's like, तो वो अपने आप ही फाउंड, अपने आप ही उसको वे मिला. राइट पेरेंट्स ने नहीं करा ना यहाँ पे, एग्जैक्टली एक डंडा नहीं था. पेरेंट्स ने कहा भाई देख तेरे को जो करना है अगर, वी वुड सपोर्ट इट, बट इट शुड फुलफिल योर, आपका पर्सनल ग्रोथ का जो एजेंडा है. पेरेंट्स ने उसकी जो अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है उसको ऑर्गेनाइज करा है ना दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन और ये एक जगह है जहाँ पे थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकता है. देखो अ पर्सन माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ठीक है लेकिन उसका माइंड डिसऑर्गेनाइज्ड है. डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी है राइट है ना तो माइंड का भी ऐसी है कि कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी है एक काम शुरू करके आधा छोड़ दिया दूसरा काम शुरू करके आधा छोड़ दिया कुछ सोच लिया कि ये करना था फिर उसके बारे में भूल गए थिंग्स लाइक दैट ठीक है. सो अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग दैट. आप खुद भी कर सकते हो एक्चुअली बट अ थेरेपिस्ट कैन बी अ सपोर्ट फॉर दैट. तो वहां पे द रोल ऑफ थेरेपिस्ट इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई डेडिकेटेडली आपके साथ बैठा है और इन चीजों को एड्रेस कर रहा है राइट. एंड ऑल्सो एक टाइम पे आप एक चीज कर रहे हो या दो चीज कर रहे हो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारी चीजें ले लेते हैं ठीक है और फिर कुछ भी नहीं होता. तो ये एक तरीका है और अल्टीमेटली फिर इसी से होता है वो सब चीजें जो आप बोलते हो एंजाइटी हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है ना. कोई चीज बैक ऑफ द माइंड में पड़ी है आपको भी नहीं पता वो क्या है लेकिन वो अब वहां से दिक्कत देना स्टार्ट कर रही है क्योंकि इट्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस राइट राइट. सो दिस इज द जॉब ऑफ अ थेरेपिस्ट. यहाँ पे दे कैन हेल्प यू. ठीक है कि वो आपके साथ बैठेंगे यू विल हैव अ डेडिकेटेड थेरेपी सेशन विद देम राइट. maybe friends also to some extent but that depends to what extent your friend is willing to listen to your things. Right. Do you believe कि men actually need therapy? Like they need therapy definitely. Do you think that? Or they Need का should तो नहीं want है to नीड take का therapy? कुछ नहीं है नीड का कुछ नहीं है Hmm. इट माइट बी यूजफुल In नीड का what तो नहीं है. in what cases do men should want to take therapy? शुड वांट टू टेक थेरेपी अगर वो किसी चीज पे ट्राई कर रहे हैं बार बार लेट्स से समबडी हैज एंगर इश्यूज और अगर वो नहीं हो पा रहे उससे रिजॉल्व तो दे शुड गो टू अ थेरेपिस्ट. क्या प्रॉब्लम है अगर तुम्हारा काम बन जाता है तो भाई दिक्कत क्या है. और एक ही यहीं चीज के पर साथ आप फिडल करते रहोगे. चलो मैंने अपने एंगर को ठीक कर लिया 5 साल लग गए
Maybe you could have managed it in 1.5 years, 2 years with a therapist. तो ले लो यार, क्या हो गया? But then there is also a perspective about better late than never. हाँ, better late than never. मैं वही चीज कह रहा हूँ कि you go there ना early. First आप खुद अपने साथ में try करो. If you're able to handle it yourself, that is fine. But this is not the definition of sanity that एक ही चीज आप बार बार करे जा रहे हो और आपको पता है it's not working out. तो Then ले that लो भाई means हेल्प। तो हाँ, ले तो लो फिर आप help। ले लो. पता है मुझे क्या लगता है, क्या बिग फैक्टर प्लेस हियर इज ईगो। मुझे नहीं लेनी किसी से हेल्प, मैं नहीं लूंगा, मुझे ठीक नहीं है. जरूरत। मेरे को कोई आके बताएगा क्या कि मेरे को क्या करना है, कैसे हम्म, डील करना है? दिस इज हम्म. द सेल्फ टॉक दैट इज हैपनिंग यार। अगर कोई आके मुझे बता रहा है इसका मतलब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मैं मास्टर नहीं हूँ अपनी जिंदगी का. ये मैं कैसे सह सकता हूँ? ये आता है दिमाग में ये बहुत मैं ज्यादा। कैसे सह सकता हूँ? हाँ, अब ये तो मैं मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए अब इस बात के लिए. हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत बेस्ट वे टू पुट इट एक्चुअली। बट देखा जाए तो अपनी जिंदगी का कोई भी मास्टर नहीं है. और इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स वी आर डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल. वही तो कह रहा हूँ। एंड द पार्ट वेयर आई एम लीडिंग टू नाउ इज दैट आई थिंक थेरेपी इज द बिग रियलिटी चेक। It shows the inside reality of you. एंड रियलिटी चेक्स कैन ऑलवेज बी गिवन बाय सम अदर पर्सन. Some other person. आप खुद को नहीं दे सकते. You cannot. खुद को तो आप सारे बढ़िया बढ़िया दे दोगे, चेक 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 10/10 10/10. वो तो दूसरा ही Exactly. देगा ना. And अगर आप ईगो को लेके चल ही रहे हो तो हम्म. भैया यू आर एट द एंड अफ्रेड ऑफ रियलिटी। यू आर एट द एंड अफ्रेड टू सी डीप इनसाइड यू। यू आर राइट. एट द एंड अफ्रेड ऑफ इट। एंड अगर आप ईगो पे ले ही रहे हो तो इट कम्स डाउन टू दैट। तो अगर आपको नेगेटिव सेल्फ करनी है टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी है अगर आप, तो आप यार ये बोलो See, कि यार personally, I'm I don't think that everybody needs therapy, but I also think कि जहाँ जो काम का मिल जाए अपना काम निकाल लो, निकाल लो। है ना. Go to therapy if it is working for you. भाई प्रॉब्लम क्या है? नहीं वर्क कर रहा तो आ जाओ वापस, वर्कआउट कर लो. अब लोगों को ये भी लगता है, या मैन को भी ये लगता है, एक सेशन कर लिया तो हो जाएगा, विच इज नॉट द केस। एक सेशन में तो कुछ नहीं होगा। एक सेशन में तो आप ही बोलते रहोगे। इफ यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स देन द फर्स्ट सेशन वुड बी अबाउट यू स्पीकिंग एंड यू टेलिंग द थेरेपिस्ट दैट दिस XYZ थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, राइट? बट देन वही होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक I सेशन would say में realistically you give 4 to 5 sessions, right? कोई भी चीज करो थोड़ा तो टाइम आपको देना पड़ेगा. 4 to 5 sessions आप दो. It also depends upon the skill of the therapist, right? Somebody might require 5 sessions, somebody might require 2, somebody might require 7, 8, whatever, right? So you'll have to give some time. ये तो मतलब क्या थेरेपी पे ही थोड़ा ना अप्लाई होती है चीज, तो दुनिया की हर चीज पे अप्लाई होती है. जिम जा रहे हो आप, क्या बोलोगे 2 दिन गया था मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी? तो ये तो नहीं चलेगा ना. भाई ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट, बट जैसे कि when we talk about how men actually perceive the world, they perceive their environment, and they talk about how they perceive relationships and work in general, what do you think actually contributes to the formation of men's perceiving, thinking, and feeling at the end? There's a strong genetic component to it. There's something known as temperament. Temperament is a gift to you from your parents. ठीक है. There's nothing you can do about your temperament. Temperament का मतलब होता है how you are at the time of birth, right? Okay. Right. From the point onwards, a baby comes out of the womb. Some children they cry a lot. Some don't. Reason क्या है? किसी को भी नहीं पता. It's genetic. This is temperament. Temperament is essentially sort of that framework जिसके ऊपर आपकी personality built होती है. Personality आपकी कहाँ से built होती है? कि जो आपके interactions हो रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, केयर गिवर्स के साथ में, ठीक है. बट टेम्परामेंट इज एसेंशियली जेनेटिक. सो टेम्परामेंट एक चीज है, माँ बाप का टेम्परामेंट कैसा हुआ करता था, ठीक है. अनदर थिंग इज योर अर्ली एक्सपीरियंसेस विद योर पेरेंट्स. दे हैव अ रोल टू प्ले. You know about Oedipus complex, right? Talk about it more for the audience. So what is Oedipus complex? This is an idea put forward by Freud, right? It's a controversial idea. Freud says that at a certain point, somewhere around age of like 4 or 5, these children they develop a certain kind of affinity or attraction for the parent of opposite sex. In the case of male child, it is for the mother, and in the case of female, it is for the father. तो मेल वाला है उसको नाम दिया गया ओडिपस. फॉर द फीमेल इट केम टू बी नोन एज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. नाउ ये है क्या? इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नॉट एसेंशियली सेक्सुअल, although there is a sexual component to it, right? It is romantic, it is admiration based, it is emotional, right? So they develop this thing for the parent of opposite sex.
और इसी वजह से क्या होता है, they start hating the other parent. For example, a boy who has developed an Oedipus complex for the mother, they'll start hating the father. ठीक है, and they will start competing with them. They will look upon them as rivals. राइट? अब फ्रॉइड ये कहता है कि ऐसे अगर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी है तो दिस थिंग नीड्स टू गो, इट नीड्स टू गेट रिजॉल्व. बट व्हाट इफ इट नेवर गेट्स रिजॉल्व? What if it never gets resolved? That means you'll continue to hate your father for the life. How it gets resolved? There has to be certain conditions for it to get resolved. Firstly, the mother has to stop that kind of advances by the child, right? Also, जो father figure है, child उससे positively relate करना शुरू होना चाहिए. तब वो ये बोलेगा कि ठीक है, I cannot have my mother in this way that I want, but maybe if I become like my father, then someday I'll have a woman like my mother. So this needs to get resolved. बहुत लोगों के नहीं हो पाते ये complexes resolved, and this Do you think this is what essentially daddy issues and mommy हाँ ये issues यही है? होता है, इन्हीं को बोला जाता है. This is इन्हीं like को ही बोला a जाता pop है. term for it. Daddy issues is that you हाँ. are still attracted to your father, right? And कहीं ना कहीं there are certain things कि Not getting fulfilled. हाँ Not getting fulfilled. हाँ it hasn't got resolved, right? And कहीं ना कहीं आप वही चीजें ढूंढ रहे हो जो आप बचपन में ढूंढ रहे थे, ठीक है? And mommy issues again, being overly dependent on your mother, On your mother. राइट? कहीं ना कहीं वही चीज एक आप अपने पार्टनर में भी आगे जाके ढूंढ रहे हो कि आप मुझे वैसे प्यार करो जैसे मेरी माँ, जो मुझे नहीं मिला. एक प्यास है जो बुझ नहीं पाई, अब आप बुझाओ वाली, ठीक है? And that's why partner से same behavior और अपने romantic other से हम्म, same behavior expect करते हो, same traits expect करते हो कि ये होने चाहिए. हाँ This happens a lot. I वही think चीज है ना. oh, if you think about it and reflect on it, काफी सारे मर्दों के साथ यही है. तो वही चीज है ना, क्योंकि काफी सारे मर्दों के नहीं है रिजॉल्व. नहीं है देखो रिजॉल्व. फ्रॉइड को ना बहुत गालियां हाँ मिलती इसी हैं और सुनने इसी को, पर तो पड़ती हैं. बट हाँ बहुत और दूसरी चीजों पे भी पड़ती हैं. बट आई वुड से कि मेनी थिंग्स इफ ही हैज सेड, अगर आप देखोगे कि ये असलियत में ऐसा है कि नहीं, तो आपको मिलेंगी वो सारी चीजें, वो मिलेंगी, ठीक है? उसका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा ये है कि भाई सीधा इन योर फेस, भाई ऐसा है, मानना है तो मानो, बाकी तुम्हारी मर्जी, नाम मत मानो. बट इफ यू सी दोज थिंग्स यू विल बी एबल टू रिलेट. That's true. आई वुड से इट इज अ वर्किंग मॉडल. मॉडल का मतलब समझते हो आप? मॉडल डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी एक्यूरेट, बट इफ इट डज द जॉब राइट, लाइक यू हैव अ ग्लोब. ग्लोब इज प्लेन, सपाट, है ना? हमारी अर्थ असल में ऐसा है क्या? नहीं. बट द ग्लोब डज द जॉब, राइट? सो वही सेम थिंग इज ट्रू फॉर फ्रॉइड. उसकी थियरी इज अ गुड मॉडल टू एक्सप्लेन इट. क्या उसके लिए जरूरी है कि भाई वो 100% एक्यूरेट हो? नहीं, बट इट डज द जॉब. क्या है मॉडल जो फ्रॉइड पोज करता है इसके लिए? दीज थिंग्स, जो उसकी पूरी साइकोसेक्सुअल थियरी है, साइकोसेक्सुअल और ऑपरेशन साइकोसेक्सुअल और वो थियरी, सब देन देयर आर डिफेंस कंपोनेंट्स, मैकेनिज्म्स. defense mechanisms, then there are Hmm. components of personality, ego, super ego, Hmm. conscious and unconscious layers of mind, all those stuff that you study in your grad. Yeah. Right. See, I think what you pointed out, this daddy issues, mommy issues thing, it's Hmm. pretty much reliable. This information is pretty much reliable Hmm. because if you reflect, so there is a interesting thing. So there is a show Big Bang Theory. Have you watched it? थोड़ा बहुत. So you Hmm. know the character Wolowitz. I don't remember. So basically जो Cooper, I Wolowitz know. का character है Hmm. basically very much dependent on his mother, right? And उसकी very वाइफ much कौन है? Bernadette. मतलब उसका नाम क्या है? वही बता सीरीज रहा वाला हूँ नाम वही क्या बता है? रहा हूँ सीरीज वाला नाम है अच्छा बर्नाडेट. अच्छा बर्नाडेट. अच्छा, अब मुझे याद आ गया. बर्नी हाँ. लाइक That blonde, बर्नी तुम बोल सकते हो क्या? that blonde woman, या blonde, redhead, या. right? सो Hmm. अब जो उसकी मम्मी है वो भी उस पे चिल्लाती है, Hmm. वो भी उस पे एक मतलब वो जो भी है ना, द रिलेशनशिप दैट ही हैज विद हिज मदर, Hmm. राइट, एंड द रिलेशनशिप दैट ही हैज विद his wife, Hmm. pretty much the same. Like he would not clean the house, he would play video games, Hmm. right? That's so sad. But like, yeah, I mean, the Hmm. point here is that pretty much reliable, right? This whole information about कि ये जो complex सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो प्यार बचपन में नहीं मिला वो अभी वो चाहिए, वो अभी जब तक मिलेगा नहीं हमारे अंदर जो वो हॉलो स्पेस है वो भरेगा नहीं, और जब तक वो भरेगा नहीं वी विल नॉट स्टार्ट वॉकिंग द रोड टू मैच्योरिटी. correct. खत्म बात. That happens.
And do you think this is the cause of immaturity in men? बहुत काफी हद तक और ये दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट क्योंकि भैया पेरेंटिंग करनी है कैसे करनी है क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है क्योंकि वो हमारे इश्यूज नहीं है ना हमारे यहाँ तो डोमिनेंट इशू रहा है सर्वाइवल का जान बच जाए आज खाने को मिल जाए टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस जनरेशन अब तो नहीं है खैर ऐसा ठीक है चेंज अभी भी ट्रांजिशन में हाँ बिकॉज सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि पुरानी जनरेशन ने अपने हम्म आइडियाज आइडियोलॉजीज पास ऑन कर रहे हैं सो सम टेक द आइडियोलॉजीज एंड सम डू नॉट टेक द आइडियोलॉजीज सम अपोज टू द आइडियोलॉजीज सो बात दैट्स वो हाउ भी इट वर्क्स राइट एक चीज ये भी है ना कि मैं वही कह रहा हूँ एज अ नेशन एज अ सोसाइटी हमारे जो मेजर इश्यूज रहे हैं दे हैव रिवॉल्व्ड अराउंड सर्वाइवल जब आप सर्वाइवल फोकस्ड हो ना तो आप इन चीजों पे फोकस नहीं कर सकते कि यार पेरेंटिंग कैसी हो रही है पेरेंटिंग हो रही है ना वो बहुत बड़ी चीज है जब आप This is what सर्वाइवल most of फोकस्ड the हो parents did in like probably my parents or your parents and हम्म you know क्योंकि that's what they think कि यार ये करना है see it comes down to पैसा लाना है घर पे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है हम्म खाना होना चाहिए बच्चे के लिए 3 टाइम का हम्म। ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए अभी तो भी ऐसे ही है तो their वैसे थोड़ा बहुत justification that they give is हम्म टाइम ही नहीं है पेरेंटिंग के बारे में सोचने का देयर इज अ किड दैट आई एम वर्किंग विद ओके ठीक है कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं उसके पढ़ता नहीं है वो बेसिकली बैठता ही नहीं है आप उसको बोलोगे पढ़ाई कर पढ़ेगा ही नहीं वो है ना घर वालों बोलते हैं हम ना अपने बच्चे को मारते नहीं है और ना इसे डांटते हैं नाउ अब मैं उसके साथ बैठता हूँ कुछ भी उसके साथ शुरू करता हूँ उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हेड डाउन करके बैठ जाता है कहता अब तू कर ले जो भी कर तू डिसाइड करके आया क्या करेगा अब ठीक है तो मदर इज लाइक कि क्यों नहीं मानता ये वो मैंने कहा आप डांटते ही नहीं हो अब उसे पता कैसे चलेगा ही इज द बॉस ऑफ द हाउस नाउ अब वो जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा वो लेके जाएगा ना आपने डाटा ना आपने थोड़ा बहुत वेरेवर इट वाज नीडेड वो चीज करी सो नाउ इट्स अप टू हिम नाउ ही विल डिसाइड ठीक है अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू एंटाइस हिम ये तो भूल जाओ कि आपका ऑर्डर मानने वाला है वो क्योंकि उसे पता है उससे मैंने थोड़ी बात करी थी कि ये सारी चीजें दैट नोबडी बीट्स यू ये वो सो ही टोल्ड मी दैट डू यू नो व्हाट आर चाइल्ड राइट्स एंड डू यू नो व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन डू yeah this is what the game राइट that these children are playing राइट nowadays I've heard this हाँ तो yeah अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं अपने Hmm. बच्चे के लिए आगे जाके यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेस इट इज गोइंग टू क्रिएट इन देयर ओन लाइफ See that's the point see what I think I know मैं तो old enough नहीं हूँ but एक मैंने जो वर्ल्ड व्यू देखा है अपने अराउंड एंड जो मुझे एक पर्सनल बिलीफ मेरा बिल्डअप हुआ है वो अब शायद से ये हुआ है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टेलिंग योर चाइल्ड टू डू XYZ थिंग बी दैट थिंग आप राइट उसको इन्वॉल्व करो अपने साथ अपने भाई साथ आजकल इन्वॉल्व पेरेंट्स के करो पास में टाइम ही नहीं है मम्मी भी जा रही है जॉब पे पापा भी जा रहे हैं जॉब पे ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं एक भैया रख लिए घर पे वो भैया अपने हिसाब से चला रहे हैं जो वो केयर टेकर ठीक है टाइम ही नहीं है यार इन्वॉल्व करो ना अपने बच्चे को अपने साथ में उसको लेके जाओ उसको कोई लेके उसको जाओ वर्कआउट की हैबिट डालो प्ले सम स्पोर्ट विद हिम स्पेंड सम टाइम विद हिम लिसन टू हिज स्टोरीज आंसर हिज क्वेश्चंस ऑल क्वेरीज या टाइम ही नहीं है हम कमाते हैं पता नहीं कमा रहे हो कि गवा रहे हो दिमाग ही नहीं है पता नहीं पेरेंट्स में आज के टाइम Is there any hack to build a very good relationship with your child as a father? यस What is that hack? involve them in some kind of physical activity with yourself take them on treks or anything where you get them involved with nature there is vast amount of data that shows that जो नेचर में हमारे मूड पे इफेक्ट होता है ठीक है इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट और आपके साथ हो रहा है तो यू आर दैट इज एन एडेड बेनिफिट ठीक है गेट इन्वॉल्व विद देम लिसन आंसर ऑल देयर क्वेरीज बच्चे क्या होते हैं बचपन में मैंने एक चीज देखी है पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ पापा ये क्या है Curious है ना ये ऐसी क्यों चल रही है वो चल रही है एक सर्टेन पॉइंट पापा कहते हैं हाँ चुप रहिए वो मेरे पास और काम है ठीक है नेवर डू दैट यार मैं ये कह रहा हूँ बच्चे तभी पैदा करो इट्स अ फुल टाइम जॉब Definitely. ठीक है इफ आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हैज टू डू इट बट इफ यू आर साइनिंग अप फॉर इट देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स दैट आर देयर है ना अदरवाइज अगर आप करियर ओरिएंटेड हो इफ यू वांट टू मेक योर करियर योर बेबी देन यू मेक योर करियर योर बेबी ठीक है फिर आप उस डायरेक्शन में मत देखो ठीक है बट अदरवाइज यार अब देखो प्रॉब्लम वही आती है ना अब ये बायोलॉजिकल नीड है सबके अंदर और फोमो भी है सब बच्चे पैदा कर रहे हैं हम कैसे ना करें है ना बट बी रैशनल अबाउट इट कि यार जो मेरे गोल्स हैं लाइफ में मेरे जो प्रोफेशनल गोल्स हैं Align करते क्या हैं वो वो। अलाइन करते हैं एक किड को पैदा करने के साथ में कैन आई अफोर्ड टू हैव अ किड राइट
And if the answer is yes, then okay. If no, then don't go in that direction. You will end up spoiling a life. सीधी सी बात है. I think there is. So, do you know Dr. Jordan Peterson? Jordan Peterson. Jordan Peterson. I know that. Yeah. Johnny Peterson or Jordan? Jordan Peterson. I know him. Yeah. So, have you watched his content or videos, right? So, I watch him a lot. Recently, started to watch him a lot, right? So, he was talking about this, that about how a father can build a good relationship with his son or daughter for that matter. And what he was putting emphasis on was कि वो कह रहा था कि भाई you go out in the like how you suggested कि आप पार्क में जाओ, right, and you play a game which challenges your child, which challenges your child. And so ये challenging का जो पूरा part है ये father को ही करना चाहिए. Is what मतलब if अगर mom dad दोनों present हैं, दोनों He's parents, right. Yes, this challenging stuff has to happen from the father. from the father. And also ये जो चीज है कि so, and he interestingly he talked about this, and I was thinking, damn, this small thing can actually be a big part of the child. अरे भाई And वो फाउंडेशन है उसकी आगे foundation आने है, वाली जिंदगी की. exactly. And what he talked about was कि आप बच्चों को उछालो as a father, आप बच्चे को उछालो उसको, because उससे thrilling experience for the child, it is a thrilling experience. मैं हवा में गया, मैंने एक drive आई, so the heartbeat increases, right, and you are in that state of enjoyment, yeah, that जैसे एक roller coaster ride होती है, for the child it's like ऊपर that. जाते हो थ्रिल आता है, जब नीचे आते हो तो डर लगता है, और जब डर लगता है तो पापा खड़े हैं पकड़ने के लिए. So many emotions It's a got model. tangled. It's a model of entire life Exactly. in itself. And so many emotions got tangled here, right? So you tell me now, because you are gonna be a parent someday, है ना? कैसे निकालोगे टाइम बच्चे के लिए? I think क्योंकि आपके तो you want to become See, something, you have many things. कैसे निकालोगे बच्चे के लिए टाइम? what you are talking about right now, पहली बात तो मैं जो भी आंसर दूंगा इसका, it is theoretical, right? So we don't know what can happen in the future. We won't Assuming know, that you have a plan. like अगर मैं कोई see, I would be very emotional as a father, I believe. I would be rational, definitely. I would be rational about time management. How I manage the time with my child, I would be rational about it. But when it comes to probably fulfilling the wants and needs of the Okay, child, tell me I would something. be If there is a conflict between the professional engagements that you have and the Okay. time, and there are going to be conflicts, right. and the time that you have to spend with your child. देखो अब ये मत बोलना कि नहीं मैं पैसा तो कम बना ही नहीं, रहा हूँ, नहीं, ये वो, है ना? टाइम, है ना? कैसे मैनेज करोगे? कि प्रोफेशनल के मान के चलो कोई मीटिंग है, और फॉर दैट मैटर बहुत सारी चीजें होंगी. मे बी यू वांट टू एडवांस योर करियर, मे बी यू हैव टू लीव द प्लेस, दैट लीव द चाइल्ड विद मदर फॉर लेट्स से एट अ स्ट्रेच फॉर 2-3-4 See, months. probably what is coming to my mind is, firstly, I would probably make sure that I go to sleep with my child, as in कि मैं अपने बच्चे के साथ ही जब मैं उसको सुलाऊं, that is very essential ठीक है, probably कि ठीक मैं है. उसको सुलाऊं. हाँ, Second is to play, I got that. I to got play, that. yeah. मैं बस एक चीज पूछ रहा हूँ. हम्म, आपको सुलाना है मैं अपने ही कर, बच्चे हाँ को, मैं ही है ना? करूंगा वो, हाँ. आज रात को मीटिंग है एक, हम्म, नहीं सुला पाओगे, क्या हम्म. करोगे? So then I would compensate it for the next day, right? I would probably find time in the morning. I would wake up early as I can wake up in the morning. For example, आप कह लो कि 4 बजे तक मीटिंग चल गई यार रात के, मैं तब भी 6 बजे उठ के, जब वो स्कूल जा रहा होगा या जो भी So है, you'll try to तब भी compensate for the I will things. try to compensate ठीक for है, the that is things. one way of dealing with that. And I will go to the extremes of it, right? If it is affecting my sleep schedule, my probably self care, but that's for a certain period of time, right? पर बहुत टाइम है यार खुद का ख्याल रखने के लिए भी. I would find time to take care of myself. You'll And make especially, some compromise, right? yeah, in the developmental stages, I would not be like कि यार मेरी मीटिंग है, मुझे सोना भी है, तो मैं मुझे मेरी डाइट अब लेनी यहीं है, से मैं तो एक मतलब फिर तो सिंपल सी चीज बता रहा हूँ. Yeah. अगर आपको पेरेंटिंग करनी है, अगर आपको पेरेंट बनना है, तो आपकी वोकैबुलरी में ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. व्हाट अबाउट मी? exactly मैं selflessness. अपनी चीज के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अगर ये एग्जिस्ट करता है, यू बेटर डोंट हैव किड्स. I think एज सिंपल एज दैट. actor Akshay Khanna got asked this question, and he said कि यार I cannot take हाँ तो responsibility. ठीक है. Simple है. तुम And that's why he I think he is not married. I think he's not married. And he doesn't have children. He is married. क्या हुआ? अच्छा कोई नहीं, बोल ले भाई. He is not married. ठीक आई है? नो he's not बोल married. सकते हो भाई तुम बीच में. He is not married, है ना? तो उसके बच्चे भी नहीं है. And he says कि ये willingly मैंने decision लिया. Of course he मैं would वही कह have रहा हूँ.
he would have romantic You know, there encounters, is right? something known as a relationship. You'll have to make big time compromises in relationship for it to work. 10x the compromises. Now you have parenting. So don't sign up for something where you are like कि यार चलो कर लेते हैं, सब कर रहे हैं ये वो, नहीं तो लाइफ इज गोइंग टू बी मेस. पेरेंटिंग कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, अपने साथ में करने पड़ेंगे, अपने प्रोफेशन के साथ में करने पड़ेंगे, अपने करियर के साथ में करने पड़ेंगे, अपने वेलबींग के साथ में करने पड़ेंगे. बेसिकली आई वुड से पेरेंटिंग इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लाइफ, बट इट इज Definitely. ओनली फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू डू कॉम्प्रोमाइज. इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को पीछे रख के एक ऐसी लाइफ जो अभी पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है उसको आप नर्चर कर रहे हो. ठीक है, इट्स अ प्रोजेक्ट, राइट? एंड यू नो दैट व्हेन यू टेक अप एनी प्रोजेक्ट, यू डोंट टेक मेनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर. इट्स अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. तो अगर आपको, इफ यू आर रेडी टू टेक दैट, इफ यू आर विलिंग टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तब ही गो इनटू दिस लाइन, अदरवाइज मत करो. एज सिंपल एज दैट. And the compromises, do you think the compromises should be done happily and willingly? कॉम्प्रोमाइजेस विल ओनली वर्क इफ दे आर डन हैप्पीली. Right. कॉम्प्रोमाइज इस तरीके का होना चाहिए कि आपको पता भी ना चले कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. हाँ. अगर आपको लग रहा है दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, समवेयर डाउन द लाइन यू विल बी अफेक्टेड. ठीक है, बट अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइजेज है कि आपको लगा अरे मैंने कुछ करा ही नहीं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चला. ठीक है, दैट इज हाउ कॉम्प्रोमाइजेज हैव टू बी. ठीक है, अब मुझे नहीं पता हाउ ट्रू इट इज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. पास्ट के टाइम्स में पेरेंट्स आर लाइक, दे आर लाइक, यू नो, वाटरिंग अ प्लांट, एंड दे आर लाइक, आई एम वाटरिंग इट सो दैट टुमारो आई कैन ईट द फ्रूट्स. है ना? वो बच्चों को इस तरीके से रेस करते हैं कि हम इनका ख्याल रख रहे हैं और ताकि फिर कल को ये कुछ हमारा वो करे. उसके बाद फिर माँ बाप कहते हैं कि भाई हमने तो इसके लिए इतना करा था, अब तो ये कुछ नहीं करता. अच्छा, मतलब आप इसलिए इन्वेस्टमेंट थी आपकी, रिटर्न बढ़िया नहीं दिया इसने आप, अच्छा इसलिए कर रहे थे आप, तो वो तो आपसे ज्यादा चालाक निकला. यही है होता ना? है, यही तो होता ये है सारी चीजें नहीं होनी सारे. चाहिए. और इंडिया में तो बहुत यही है कि अगर आप बच्चे को बड़ा that's कर रहे हो तो डू इट फॉर द एक्सपीरियंस, दैट आई एम एंजॉइंग दिस एक्सपीरियंस. अब देयर इज नथिंग टू गेन आउट ऑफ इट. भाई कल को हो सकता है मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करे, राइट? बट आई नो आई एम राइट एंड आई एम डूइंग इट फॉर द एक्सपीरियंस. आई नो दैट कहीं ना कहीं दिस इज द राइट थिंग टू डू. हो सकता है कल को वो बोले आपने मेरे लिए किया करा है, आपने मेरे लिए करा ही क्या है. सब बच्चे बोलते हैं अपने पेरेंट्स को ये. ठीक है, वाइजेस्ट पेरेंट्स नो व्हाट दे हैव डन एंड दे डोंट हैव टू रिप्लाई कि भाई ये करा मैंने. ठीक है, उन्हें पता है कि ये यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा है बिकॉज थिंग्स हैव बीन डन, राइट? बट आप ये बोल रहे हो कि नहीं, अब ये मुझे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, वो तो करेगा ही आपको क्वेश्चन. अब वो अब एक इंडिपेंडेंट लाइफ बन चुका है, और वो इसलिए बना है क्योंकि आपने उसको नर्चर करा. ठीक है, दैट इज प्रूफ इन इटसेल्फ. बट आप इसलिए मत करो कि कल को तू मेरे को ये, आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, देन इट्स अ डील, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ डील. आज मैं तेरा कर रहा हूँ, कल तू मेरा करियो, तू मेरा नहीं करेगा तो भाई यू विल स्टार्ट हैविंग इट फ्रॉम मी. या फिर किसी पॉइंट पे नर्चरेंस में उनको लगने लग जाता है दिस इज गोइंग टू बी अ फेल इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दे विल पुल ऑफ एवरीथिंग. ऐसे भी करते हैं. So this is not, you do like this, life will teach you a lesson. is there anything is there anything known as unconditional love? हाँ बिल्कुल है. There is. Parents, I would say anything that comes close to it is, many Parents. parents they do it, many people they do it for the society. यार एक सैनिक अपनी जान जाके गंवा रहा है बॉर्डर पे, ठीक है, ताकि वो हम मेरा लोग सो दोस्त है सके. ना, he is in Navy हाँ तो मैं and वही तो कह रहा he's हूँ. doing good. Hmm. He's going he probably took that decision, right? Then I want to do this. There have been instances where Yeah. these people have made such calls Hmm. जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को बचाने के लिए Hmm. दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ. भाई क्या है वो अनकंडीशनल लव ही तो यार. वो अपने बारे में थोड़ा ना सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि 5 लोग बच जाएं, 10 लोग बच जाएं, मेरी सिटी बच जाए, मेरा देश बच जाए, सो आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ, राइट? पार्टनर्स भी होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल. पार्टनर्स भी होते हैं जो कहते हैं ओके, इवन इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी, आई लव दिस पर्सन, Yeah, दे विल बी exactly. राइट, See? राइट? और Hmm. ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बचे रहते हैं. दीज आर द पीपल हु एक्चुअली, ऐसा लगता है कि दे आर सफरिंग अ लॉट बट दे सफर द लीस्ट. पीपल हु सफर द मोस्ट आर द पीपल दैट, मैंने तो ये बोला था कि तू ये करेगा तो तूने ये नहीं करा तो मैं भी ये क्यों करूं. भाई इट्स नॉट अबाउट दैट. यू एक्ट लाइक दिस, यू विल Yeah, they सफर, think about reciprocity राइट? and which मैं वही कह रहा हूँ कि यू गेट इनटू समथिंग, देन मेक इट दैट आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट. ठीक है, अदरवाइज यू डोंट गेट इनटू इट और डोंट गेट मच इन्वॉल्व, है ना?
रिलेशनशिप्स को बिजनेस डील की तरह जो ट्रीट करेगा दे विल सफर अ लॉस, क्योंकि भाई बिजनेस में तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। एंड मोस्ट लाइकली इफ यू आर ट्रीटिंग रिलेशनशिप्स लाइक बिजनेस यू आर अ लाउजी थिंकर, मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी अ लॉस। ठीक है, यू गिव व्हाट यू हैव टू गिव, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एंड रिजल्ट मैटर नहीं करता। See, you know, ये जो आपने लर्निंग दी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है एंड इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है ऑन रिलेशनशिप्स, हाउ एन इंडिविजुअल डील्स विद देयर रिलेशनशिप. But now what happens with men essentially here is that even if they take this learning right at a हम्म, very young age, so to say, हम्म, and they give the all the love and affection that they have to the other person, हम्म, maybe 16 17 18 इस ब्रैकेट में दे दिया, 16 से 20 के बीच में, ठीक है। एंड आगे से वो नहीं आ रहा, बट योर इंटेंशन इज टू गिव, टू जस्ट लाइक शावर द लव फॉर द अदर पर्सन, हम्म, बट वो नहीं होता. अब क्या होता है, आपका ब्रेकअप हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है। फ्रॉम अ मैन्स हम्म, पर्सपेक्टिव, राइट, और हम्म, टिपिकल मैन पर्सपेक्टिव, हम्म, कि आपका ब्रेकअप हो गया एंड देन यू आर अफ्रेड टू लव देन, एंड देन यू आर अफ्रेड टू. नाउ हम्म, व्हाट आई थिंक एसेंशियली हियर इज दैट कि आपको एक तो लव बॉम्बिंग नहीं करनी है भाई, स्टार्टिंग में ही आपको जाके सारा हम्म, प्यार नहीं शावर कर देना. You हम्म, need to hold your emotions, you need to control them, because then there is a consequence of it that can happen So yeah, your in the love has to be future. mature. So your Holding love in has to be emotions. mature. And when we हाँ, talk about men expressing their love हम्म, in India specifically, तो वो जाके मैं जान दे दूंगा, मैं नस काट दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये सब ने करा है. मतलब ये सारे मर्दों ने करा है यार, हम्म, मोस्टली मैन ने करा है. इवन हम्म, आई हैव डन इट इन माई, मतलब हम्म, when I got introduced to this whole relationship idea हम्म, of being with a romantic someone, हम्म, that yes, I would shower love, and then that gave me a learning eventually that no, this is not how I have to deal with it. हम्म. This is not. But like वो लोग कर नहीं पाते ना लोग. What I'm telling you is that the हम्म, focus of your love has to be the well-being of the person, right? Well-being of the person. It does not have to be your well-being. क्योंकि फिर नहीं तो फिर आप उसी दोबारा सर्कस में फंस जाओगे कि यार मेरा तो फायदा ही नहीं हो रहा, है ना? It has to be well-being of the other person. Well-being at times means क्या कि at times you need to hold it back. At times you हम्म, need to say something that is not good to hear. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अल्टीमेटली देखो, मैं सच बात बता रहा हूँ, एक्चुअल में ओनली एट अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस you are capable of loving, otherwise you are definitely, not even capable. definitely. Most of the relationships are not relationships, they are deals. I'll do this, you do that. The moment किसी को लगने लगता है कि I signed up for this, now I'm not getting it, they want to bail out. ठीक है, it's not always physical, it's emotional also. ठीक है, it's emotional also. ठीक है, so try and see, like explore and experiment. If अभी जो मैंने बात बोली है ये अगेन इट कैन बी वेरी कंट्रोवर्शियल कि यार देयर इज नथिंग इन फॉर मी इन टू गेट इनटू द रिलेशनशिप, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम विद इट, राइट? सो try and enter into a relationship with this attitude that You're ready I to will give. give as Hmm. much as possible. Yeah. And now मुझे ये इंसान इतना ज्यादा पसंद है कि इवन इफ उसका वेलबींग हो जाए और मेरा वेलबींग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो सो आई एम फाइन विद चलेगा, दैट, चलेगा. है ना? क्योंकि यार मैं अपनी लाइफ वहीं खर्च करूंगा जो इतना वर्दी होगा, मैं बोलूंगा ये तो मेरे से भी ज्यादा वर्दी है यार, मेरी लाइफ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम बोल रहे हो कि मैं इसे वहीं खर्च करूंगा जहां मुझे दिखेगा कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा वर्दी है। और एक बार मैंने डिसाइड कर लिया, देन आई वोंट वरी दैट माई लाइफ इज गेटिंग ट्रबल, दिस इज हैपनिंग टू मी, दैट इज हैपनिंग टू मी. वंस आई डिसाइड दिस पर्सन इज वर्दी, राइट, देन आई विल नॉट होल्ड बैक, राइट? जब भी हम कोई एम भी डिसाइड करते हैं अपने लिए, है ना, पहले आप देख के डिसाइड कर लो. वंस यू डिसाइड देन यू नेवर होल्ड बैक ना कि यार So, ये हो जाएगा वो हो see, जाएगा. so that's why I think in the initial stages of your relationship, probably be cautious, right? You can be cautious about the other person a bit. ठीक है, you can have some trust issues, you can have some boundaries कि नहीं मैं इतना प्यार अभी नहीं दूंगा and everything. This is normal. This is normal to Hmm. happen. But then eventually, when there is a significant period of time Hmm. that has been with you, that has that like इतना time हो चुका है for you guys to be together. Hmm. तो उसके बाद then you can, मैं if you वही have कह रहा हूँ. decided, if there is a decision that yes, this is the person I want to be with हाँ. for the rest of my life, and then you can give you can give unconditional love, you can do the unconditional love. Hmm. Probably that's the conclusion that we can आई come. वुड से अगर आप देखो मेनली फिर क्या चीज आ रही है, वही डर है ना कि अगर मैंने ये करा और फिर ऐसा नहीं हुआ Yeah, तो, there is है ना? fear. आई वुड से इफ यू आर ट्रूली एबल टू गिव अनकंडीशनल लव, यू विल नेवर बी ऑन द लूजिंग साइड, नेवर एवर, बिकॉज देयर विल बी नथिंग टू,
nothing will be there to lose. अनकंडीशनल का मतलब ही ये है कि अगर सामने वाले का फायदा हो रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। ऐसे आइडियोलॉजी जिसकी है वो लूज करेगा क्या कभी लाइफ में? उसकी जान भी चली जाएगी, वो कहेगा आई एम ऑन द विनिंग साइड, है ना? अभी बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है रेवोल्यूशनरी आइडिया, ये तो जेन जी के साथ में रिलेट नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें। No, actually, you know, many people have प्रैक्टिकल स्टफ व्हाट आई थिंक। see many men कह रहा हूँ, many guys in my generation they think like this definitely. हाँ I have seen कि वो ऐसे सोचते जरूर हैं, but they are very much afraid. See, they are very much afraid of the consequences of it because they know कि आगे वाला मतलब क्या होता है, I think there is a fear of being Fear is the problem, ना? there is a fear of being the only one doing so. फियर इज द प्रॉब्लम। रूट कॉज क्या है सारे फियर का? अब फिर ये पीछे then जाना there is पड़ेगा, then there is a फिर history वो that डिगिंग you करनी take. पड़ेगी, Yeah, है then ना? there मैं are आपको वही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली hmm, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बुरा लगेगा, नॉट एवरीबडी इज केपेबल ऑफ लविंग। very अनकंडीशनल लव तो छोड़ दो, उसकी तो मैं loving. बात ही नहीं कर रहा, हाँ, मैं नॉर्मल कंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ। वो भी नॉट एवरीबडी इज केपेबल, only at certain level of maturity and awareness a person develops that ability, right? Like every plant is not capable of flowering, every plant is not capable of bearing the fruits, but अब ऐसे लगेगा आप इतनी गंदी बात क्यों कर रहे हो, इंसानों के लिए ऐसे बोल रहे हो, everybody is capable of loving, ऐसा नहीं होता, अच्छी अच्छी बातें करो, सच नहीं है वो। When a man, you know, like breaks up with their partner, right, and there is a breakup that has happened, or there is a phase of suffering that has happened, right, a phase of tragedy that has happened, how do men actually grieve, and maybe what is the right way to grieve actually? ठीक है, there is no universally right way of grieving, men versus women बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये चीज देखी गई है कि मेन आर सॉल्यूशन फोकस्ड, क्या चीज है जिससे मुझे इतनी परेशान हो रही है, हाउ आई कैन मेक इट बेटर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इमोशनल कोपिंग होती है ये चीज ज्यादा फीमेल्स के साथ में देखी गई है, ठीक है। सो टिपिकली जो मेन का तरीका है ग्रीव करने का वो ये है कि दे विल ट्राई, एंड दिस इज अ गुड वे, दिस इज अ इन सर्टेन वे, ये एक चैनलाइज करने का तरीका है कि दे विल ट्राई टू मेक देमसेल्व्स बेटर, राइट। नाउ अगेन थोड़ा सा हल्का सा डिटूर लेते हैं। I don't know to what extent this is true. I'm just telling based on what I have heard. You have heard this controversial figure, Andrew Tate, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनके साथ में पॉजिटिवली रिलेट करता हूँ, नेगेटिवली रिलेट करता हूँ, लेकिन वो जो बंदा बोलता है बात, वो ये कहता है कि यार मैंने इतना रिजेक्शन देखा आज के टाइम पे, द वे ही प्रोजेक्ट्स इट, ही सेज दैट ही इज वेरी सक्सेसफुल, वो सारी चीजें। अब मुझे नहीं पता, टू एन एक्सटेंट ऐसा लगता है कि हाँ ही इज एक्चुअली दैट इन्फ्लुएंशियल, इतना रिच, वो सारी चीजें, ही ओन्स अ लॉट ऑफ पैसा है उसके पास काफी। सो वो ये बात बोलता है कि यार मैंने इतना ज्यादा रिजेक्शन देखा और मैंने इतना ज्यादा झेला, ठीक है, कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन अदर देन दिस टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि मैन का तरीका ये है कि वो मुझे छोड़ के गई है, इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं, अब मैं लायक बनूंगा, ठीक है। सम पीपल इवन टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड, अब मैं उससे भी ऊपर बन जाऊंगा, ठीक है, ताकि फिर उसको लगेगा कि भाई माई लॉस, राइट। So this is one way of grieving for men, and then there are also people जो फिर कभी उठ ही नहीं पाते लाइफ में, they get caught up in that ruckus. So I would say best way is to channelize it in a direction जहाँ पे आप बोलो कि this thing has happened to me, now I will never ever let somebody do this, and the how I will manage it, I will make into a better version of myself. मेरी लाइफ में जो चीजें messed up है, be it body, be it career, be it this or that, whatever, I'm gonna fix it. I'm going to do the job. I'm gonna pick up the wrench, hammer, whatever. I'm gonna fix it. Whatever is broken, I'm having this trouble because something is broken. Now I'm going to do the job. I'm gonna pick it up. I'm gonna fix it. That is a good way to deal with it. Pretty much right thing to say, I think. What is the one advice that you would give to all men? All men. I would say that physical fitness पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है, because believe it or not, it is something that will translate into psychological fitness. है क्या यार, बॉडी और माइंड है ना, इसके अलावा और क्या ही है, आत्मा वगैरह होती, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, Spiritual affair. राइट। बट यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ माइंड, मोस्ट ऑफ यू कैन नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन योर माइंड,
ठीक है, most of you, right? But you can directly work on your body, and if you work on your body, kahin na kahin it will translate into psychological strength, or the official term is resilience. It will build resilience. This is a simple way. ये ऐसा लग रहा होगा कि क्या सिंपल तरीका है, सिंपल ही बता रहा हूँ मैं, ताकि आसानी से लोग अप्लाई कर सके. कुछ नहीं कर रहे तो वर्कआउट कर लो, ठीक है, एंड डू चैलेंजिंग वर्कआउट दैट इवेंचुअली, आई मीन हैव अ हायरार्की कि आज मैंने इतना करा. मैं नहीं कह रहा कि जाके जिम में 1 घंटा बिताओ, ये करो वो करो, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज डू समथिंग फिजिकल. योर एनर्जी नीड्स टू बी एक्सपेंडेड. मोस्ट ऑफ द मेस दैट इज हैपनिंग साइकोलॉजिकली, it is psychological energy that is running wild. You need to give some direction to that. The moment you give some direction to that, many things will organize. ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार मैंने तो फिजिकल चीज करी थी, हाउ कम आई हैव डेवलप्ड साइकोलॉजिकली. इट विल ट्रांसलेट इनटू साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. See, I have lived that as well. Hmm. This whole idea of that. But the thing is that there are many men out there who work on their body and not just like going to the gym, playing some sport and actually working on their हाँ, body. प्लेइंग स्पोर्ट इज फाइन. But actually क्या होता है कि फिर वो रुक जाते हैं. The growth stops. मैंने बॉडी पे काम कर लिया, मेरी एक ऐसा फिजिक बन गया जो मैं चाहता था, बट देन फिर भी माइंड डेवलप नहीं हुआ. ग्रोथ रुक गया. आप समझ रहे हो कि बॉडी तो हो गई डेवलप, पर ठीक है. वो ट्रांजिशन नहीं हो पा रही है, वो एनर्जी पास ऑन नहीं हो पा रही है टू द आगे कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो कोई रहा. फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है. See, वो मेंटल वेलबींग में नहीं हम्म. जा रहा, वो इमोशनल ग्रोथ में नहीं जा रहा, वो रिलेशनशिप ग्रोथ में नहीं जा रहा, वो सेल्फ ग्रोथ पे नहीं जा रहा. See, men, honestly, I'll tell you, men, अब ये क्योंकि men focused है, men work best, think best when they are working in packs. ठीक है, have a circle. ये lone wolf मत बनो, मत बनो. have a circle. बहुत जरूरी है, तुम्हारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए जरूरी है. एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, एंड यू कैन शेयर स्टफ among your members and all these things. This is very important. कहीं ना कहीं there will be times when you will let yourself down, but हम लोग के साथ में एक चीज होती है, we don't want to let the other person down. जिस दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा ना, तुम्हारा जिम्बडी बोलेगा तुम्हें, हाँ भाई क्या चक्कर है, उस दिन बोला था that you have to spot me or whatever you have to do, चल उठ चल, that is gonna work like a boost. एंड दैट इज व्हाई वो जो दो टीम बन जाती है ना जिम जाने की, दो लड़कों की, वो हमेशा I'm चलती telling you, है. इसीलिए because चलती है all वो. these things are based on life experience. It is based on psychological literature. If you have a person or if you have a extended group और dedicatedly आप दोनों मिलके किसी एक चीज की तरफ वो कर रहे हो, this is going to be a big strength. है ना, डेफिनेटली. मोटिवेशन, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज कहीं है कि हम we can let ourselves down, that यार आज ये नहीं है, but we can't let other person down. Do you think how the importance of a friend circle for men is different for women? Like जितना important men के लिए है friendships का रोल होना, it is different from कितना women के लिए important है friendships का हाँ, रोल. अलग है, अलग है. अलग है. हाँ. Do you think what do you think is the difference? Men are more into building stuff. By building I don't mean anything like भाई house or something like that. I don't mean. They want to create something. ठीक है. Women are more, this is again based on research, or even what I have seen, जितना मेरे को लगता है, I might be wrong. ठीक है. Women are more into sharing stuff. ठीक है. I'm feeling like this, I need to tell the other person that I'm feeling like this. This is women. Men are like, this is what I want to do and I want to do it. कि वही solution oriented mentality है ना, जो फिर relationships में भी बहुत बार औरतों को पसंद नहीं आती, कि I want you to listen to me, but आप मुझे solution दे रहे हो. I want you to relate with me. है ना, ऐसा हो रहा है और ये सारी चीजें, तो आदमी लोग क्या करते हैं, वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, बट दैट इज नॉट व्हाट they want somebody to be able to relate to it, to understand that what I'm going through. Relatability comes. है ना, solution तो even they know, right? But men are not like that. See, I think men seek high relatability with their friendships, and the reason is simple, that they don't want to feel alone here. Like they don't want to feel कि only I am the one who is experiencing things. That's a human thing in general, I know. But also with men it's like कि अगर हम लोग for example बात करते हैं दो मर्दों की जिनका मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है, जिनकी मैरिज में भी दोनों जगह से मेस्ड अप है, तो उनके लिए वो जो कॉन्वर्जेशन है ना अबाउट कि यार हाँ मेरी वाली ने तो ये कर दिया, तेरी वाले ने ये कर दिया, they laugh about it. That is maybe essential for them. And the reason is why
क्योंकि they want to feel chill. They want a place where they are not playing any roles and they are just there at that time. See, चाहे औरतों में हो चाहे मेल्स में हो, I mean, see, obviously this it is helps just हाँ to have friends. हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, in friendships what happens is that you are not playing any roles of the society here. Hmm. You're not a husband, you're not a boyfriend, you're not a girlfriend, you're not a you're जो भी आपका प्रोफेशन है, right? You're not a professor when you're with your friends. तब उनके लिए आप कार्तिक हो, Hmm. ये तो कार्तिक है, या जो भी आपका निकनेम है फॉर दैट मैटर, कार्तिक है ना, मतलब वही. सो दैट हैपेंस, राइट? उनके लिए चाहे मैं अपनी लाइफ में जितना भी कर लूँ, ये लोग मुझे वैसे ही देखेंगे जैसे इन्होंने देखा है मुझे स्कूल में. वो जो लो सेल्फ एस्टीम वाला और वो सब चीजें, वो ऐसे ही मुझे देखने वाले हैं. ये लंब बातें करते हैं, बेवकूफ है, ये सारी चीजें उनके लिए सब नहीं मैटर करते रोल्स ऑफ सोसाइटी, राइट? सो वो जो कॉन्वर्सेशन होती है 4 मर्दों के बीच में, वहां पे क्यों वो देना हंसते हैं, या ये बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल्स, राइट? Right. It's like mask off. It's like mask off. Now I can be like this. I can say anything which is not So you even think this mask off is not true in case of women? They're still wearing the mask when they are. You know what happens with women, even physiologically or biologically, is that they need to be very much out there emotionally. They need to be. अगर आप हॉर्मोनल्स पे चले जाओ उनके, या जो उनके पीरियड्स वगैरह के टाइम पे चले जाओ, तो उसमें भी बहुत इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशंस रहती हैं. 10 बार तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट? तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज नेचुरल फॉर वुमेन इन अ वे, बिकॉज बायोलॉजिकली बॉडी ऐसा फंक्शन कर रहा है, फिजियोलॉजिकली ऐसा फंक्शन Yeah, कर रहा है. their biology is हाँ, it's a- hardwired differently. इट्स they're hardwired different. So वो नेचुरल है टू एक्सप्रेस. गुस्सा दिखाएंगी, भाव खाएंगी, कुछ भी करेंगी, नहीं बात करेंगी, या फिर टैंट्रम्स होंगे एंड एवरीथिंग. मैन के साथ नहीं है ना ये. आपने बोला सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रहता है, ये रहता है, फोकस माइंड रहता है, and ये सारी चीजें से लीड होती है चीजें, राइट? See, So- men give more value to the result. टू द रिजल्ट, राइट? Women give more value to the process. प्रोसेस ऑफ इट. है ना? कि very simple way is women enjoy the journey. Men are more about reaching the destination. टीचिंग द डेस्टिनेशन. हाँ. एंड दैट्स हाउ अ टू. इसीलिए वो कपल जहां पे एक बंदे को शायद से डेस्टिनेशन चाहिए और जहां पे एक बंदी को प्रोसेस चाहिए, दे कैन एक्चुअली कम्युनिकेट प्रीटी वेल हियर. कि बंदी बताएगी कि भाई तू प्रोसेस देखना, सही तू बात है. ये देखना यार कि अभी क्या चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, ये जो हम डेट पे आ रखे कितना सही है ना, तू छोड़ना कि बाद में तेरे को क्या मिल रहा है इससे. You're sounding too much relatable. Because this is something that I always get to hear. I'm like, okay, भाई ये करना है, ये करना है. Be here. This is Exactly. See, I was reading a book which Osho wrote, I think, on happiness. And he talked about that happiness is being in the present. You're not thinking about the future. And by future, I don't mean कि 10 साल, 15 साल. अरे भाई, future जो अगले घंटे में होगा. Future जो तेरा दूसरा मिनट पकड़ेगा. Yeah, this is true. तो मैं वही कह रहा हूँ. औरतें ज़्यादा process oriented हैं. This is like totally I understand Exactly. this. So like ये जो चीज़ है ना, what was my motive to talk about this here, to mention this, is it would become a very good bond, like between a guy who is focused on destination and a woman who is focused on the process of it, and she can advise him and tell him कि भैया रुक जा, तू इधर बैठ. And he can also say कि यार तू आगे भी देख कि हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे, तो it can become very exciting for the both of us, right? Yes. We're gonna get this if we do this. Isn't this exciting? Or even if it is something that is pretty negative, तो वो भी तो सही है ना कि यार हाँ ये चीज हो गई तो इसका कॉन्सिक्वेंस यार ये जरूर हो सकता है, पर ठीक है हम लोग करके देखते हैं. ये करके देखने वाली जो लाइन है, ये कौन कहता है? औरत कहेगी ना, करके देखते हैं, करके Right. देखते हैं. मर्द कहेगा नेगेटिव आउटकम आ सकता है, बट तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना दोनों का. This is most of the time spoken by women, that करके देखते हैं. Agreed. Let's give it a try. Let's give it a try, right? And कई बार ये क्या होता है, ये चीज फुलफिल हो जाती है even with two men, right? जिसके अंदर मे बी फेमिनिन का ज्यादा हाई रहेगा, फेमिनिनिटी can, रहेगी. yes. It can, कि एक बंदा बोल रहा है कि भाई नहीं, यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक बंदा कहेगा भाई तू छोड़ना यार, तू करके तो दे कभी. Have you people read Jung? Like Carl Jung, heard about him, and so Jung heard says some that of the there is a theories. hidden suppressed feminine self in every male, and there's a Just masculine hidden suppressed self in every in women. woman, right? Ideally, we should be able to find a balance, and when you find balance, you will neither be masculine nor be feminine. You will be balanced. ठीक है?
in that case maybe you will be the kind of person जिसको एक relationship की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वही सीख करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है ना like we as males are trying to seek the qualities of a woman लेकिन जो हमारे अंदर नहीं है क्योंकि हम कांटेक्ट में नहीं है उस फेमिनाइन सेल्फ के साथ में तो हम एक इंसान ढूंढते हैं जिसमें वो सारी चीजें हो जिसमें वो सारी चीज़ ठीक है होती तो हाँ इट कैन बी अ गुड पार्टनरशिप आई एग्री विद दैट एंड इट कैन इवन हैपन विद अ मेल मैं मना नहीं कर रहा इस चीज करेक्ट पॉसिबल So I think we should wrap this up because it has taken a pretty significant amount of time. But this was a great conversation, I think. Do you have anything, Yeah. suggestion or a question for me here? what Anything. question Anything, these yeah. people are very bored That's I don't okay. want I to don't really care about make- that. They are here on their words, so I know that. So, Hmm. is there any question or suggestion that you have for me, maybe? I would say that बहुत पहले तो I would really like you know कि ये आप कर रहे हो भाई honestly I would you're how old are you 20 20. I was a mess when I was 20 I can't even tell you Yeah. about the things that I would be doing right but okay fine so I think that is a good thing इसको थोड़ा सा structuring और organizing इसकी और ज्यादा हो सकती है Right. ठीक है and बाकी तो भाई what can how can I suggest anything to you you are already way above than me when that I was when I was 20 मैं क्या ही बोलूं I cannot ever imagine myself doing stuff like this when I was 20 Thank you so much, sir. Thank you so much.